Welcome to class 6th Maths NCERT Ganit Prakash chapter 1. Today we are going to start with chapter 1 which is patterns in mathematics. Now अब ये बहुत हम आसानी से समझेंगे चैप्टर. ठीक है. मैथमेटिक्स है क्या? Is in large part the search for patterns and for the explanation as to why those patterns exist. हमने एक पैटर्न फाइंड करना है और देखना है कि वो पैटर्न ऐसे क्यों एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है. और ये पैटर्न हमें हर जगह मिलते हैं. These such patterns indeed exist all around us in nature, in our homes, schools and motion of the sun, moon and stars. अब आप जैसे देखो, आप कर्टन्स देखो, अपने कर्टन्स पे भी कोई पैटर्न बना होगा आपके. ठीक है. इवन इफ यू हैव वॉलपेपर तो उसके ऊपर भी कोई पैटर्न बना होगा. लीव्स लीव्स देखो, लीव्स के भी जो ट्रीज के लीव्स होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न बना होता है. They occur in everything that we do and see, from shopping and cooking to throwing a ball and playing games to understanding weather patterns and using technology. ठीक है. The search for patterns and their explanation can be a fun and creative endeavor. It is for this reason that mathematicians think of mathematics both as an art and as a science. मतलब मैथ्स को एज ए आर्ट और एज साइंस दोनों लिए जाते हैं. This year we hope that you will get a chance to see creativity and artistry involved in discovering and understanding mathematical patterns. It is important to keep in mind that mathematics aims to not just find out what patterns exist but also explanation for why they exist. ठीक है. अब इन्होंने बताया कि हम मतलब इन क्रक्स में आपको बताऊंगे कि वो सिर्फ पैटर्न्स की बात कर रहे हैं. कमिंग टू मेन पॉइंट्स. नाउ कमिंग टू द पैटर्न्स इन नंबर्स. पहला हम देखेंगे, among the most basic patterns that occur in mathematics are patterns of numbers. ठीक है. नंबर्स देखेंगे हम. जीरो, पर्टिकुलरली ऑफ अ होल नंबर. होल नंबर्स कौन से होते हैं? दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो. 0, 1, 2, 3, 4. The branch of mathematics that studies patterns in whole numbers is called number theory. अब ये इसको क्या कहते हैं हम? Number theory. Number sequences are the most basic and among the most fascinating types of patterns that mathematics study. Table 1 shows some key number sequence that are studied in the mathematics. अब टेबल 1 पे देखो, मैं आपको क्रक्स में फटाफट करवाएंगे सो दैट हम वर्कशीट पे ध्यान दें, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा समझ आएगा. नाउ दिस इज टेबल 1 एग्जांपल्स ऑफ नंबर सीक्वेंसेस. 1 1 1 1, these are all ones. 1 2 3 4 5 6 7, these are all counting numbers. 1 3 5 7 9. अब ये देखो, ये और नंबर्स आ रहे हैं. ये पैटर्न्स है, आपको ये पहचानने हैं. 2 4 6 8 10 12 14 with all interval of 2, तो ये even numbers आ रहे हैं. 1 3 6 10 15 21 28, this is triangular numbers. 1 4 9 16 25 36 49, these are squares. Squares कैसे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, this is 4 का स्क्वायर 16, 5 square 25, 6 square is 36, 7 square is 49. Now 2 square means 2 into 2. 2 into 2 को हम ऐसे लिख देते हैं 2 square. 3 into 3 को लिख देंगे हम 3 square. ठीक है. 1 8 27 64 125 216, these are all cubes. Cubes means they are cubes of number. Now 1 cube is 1. 1 क्यूब मीन्स 1 into 1 into 1. 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा. ठीक है. 2 क्यूब इज 2 into 2 into 2. 2 क्यूब मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 into 2 4, 4 2 is 8. ठीक है. we get 8. Similarly we get 27 64 125 216 for
6 क्यूब, उसका क्या मतलब हुआ? 6 इंटू 6 इंटू 6। नेक्स्ट पैटर्न 1 2 3 5 8 13 21। अब ये देखो, ये पैटर्न को समझो। दिस इज विरंका नंबर्स, दिस इज important, you should remember this। 1 2 3 5 8 13 21। ये कैसे आ रहा है? देखो 1 प्लस 2, पिछले दो नंबर्स को ऐड करके अगला नंबर बन रहा है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, ठीक है। फिर 3 प्लस 2 क्या बन रहा है? 5। फिर 5 प्लस 3 क्या बन रहा है? 8। 8 प्लस 3 क्या, 8 प्लस 5 क्या बन रहा है? 13। 13 और 8 क्या बनेगा? 21, ठीक है। अब आगे क्या आएगा? 21 प्लस 13 क्या बनेगा? यस, राइट, 34। This is called Viranka numbers. Now 1 2 4 8 16 32 64, this is power of 2, power of 2। कैसे? 1 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब आपको ये मतलब समझ आता है? 2 रेज टू पावर 1 मीन्स 2, 2 raised to power 2 is 2 into 2, which is 4। 2 raised to power 3 is 2 into 2 into 2, which is 8। Done? Now coming to next 1 3 9 27 81 243 729। This is power of 3। Similarly ये भी वैसे ही है। 1 3 टू द पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। ये क्या आएगा? 1। ये क्या आएगा? 3। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 क्यूब क्या होता है? 27। सी 1 3 9 27 81 243 729, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे पैटर्न्स इन नंबर। अब ये नंबर सीक्वेंसेस है। नाउ कमिंग टू विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। मैनी नंबर सीक्वेंसेस कैन बी विजुअलाइज यूजिंग पिक्चर्स। पिक्चर्स देख के हम विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम्स कैन बी वेरी फ्रूटफुल वे टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड कंसेप्ट्स। अब देखो, ये पिक्टोरल फॉर्म है। पिक्टोरल फॉर्म में हम समझेंगे कि कैसे करते हैं। 1 1 डॉट रिप्रेजेंटेड बाय 1, 1 1 1 1, ये सारे 1 है। फिर 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट, फिर ये काउंटिंग नंबर्स आ गए। फिर ये 1, फिर 2, फिर 1 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ये और नंबर्स आ गए। सेम पैटर्न जो हमने पहले देखे हैं उस पिछले टेबल में, उनको इन्होंने पिक्टोरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। 2 4 6 8 10, 2 डॉट्स 4 डॉट्स 6 डॉट्स 8 डॉट्स 10 डॉट्स आर इवन नंबर्स। फिर 1 डॉट 3 डॉट 6 डॉट 10 डॉट 15 डॉट्स आर ट्रायंगुलर नंबर्स, ठीक है। देखो 1 डॉट, फिर 3 डॉट बनाएंगे तो भी ट्रायंगल बनेगा, 6 डॉट्स बनाएंगे तो भी ट्रायंगल बनेगा, 10 डॉट्स बनाएंगे तो भी ट्रायंगल बनेगा, 15 डॉट्स बनाएंगे तो भी ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। नाउ 1 4 1 डॉट 4 डॉट 9 16 25, ये आपको समझ आ रहा है ना कि दीज आर स्क्वेयर्स। ये 1 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर। 1 8, ये 1, ये 8 का क्यूब, ये 27, ये 64, ये 125। So this is 1 cube, this is right 2 cube, 3 cube, 4 cube, 5 cube. Yeah, I hope you know this, how what does this mean? 5 cube is 5 को 3 times multiply करना है, तो इतना बड़ा लिखने की बजाय हम ये लिख देते हैं, ठीक है। 4 क्यूब मीन्स 4 को 3 times मल्टीप्लाई करना है,
ऐसा नहीं है कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये नहीं होता इसका मतलब। जो बेस होता है उसको मल्टीप्लाई करना है कितनी टाइम्स, जितनी टाइम्स ऊपर पार लिखी हुई है। ठीक है, गॉट इट। नाउ कमिंग टू अनदर कंसेप्ट, रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस। अब हम रिलेशन फाइंड करेंगे। समटाइम्स नंबर सीक्वेंसेस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन सरप्राइजिंग वेज। कैसे? व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर्स? 1 तो 1 रहेगा, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 3 प्लस 5। अब 1 के बाद और नंबर कौन सा है? 3। 3 के बाद और नंबर कौन सा है? 5। ठीक है, तो 9 आ गया हमारा। फिर उसके बाद 5 के बाद और नंबर कौन सा है? 1 3 5 के बाद 7। देखो और नंबर लिखो, 1 3 5 7 9 फिर 11 फिर 13। देखो ठीक है, यहाँ पे 7 ऐड कर दिया, फिर नेक्स्ट नंबर में 9 ऐड कर दिया, फिर उसके नेक्स्ट नंबर में 11 ऐड कर दिया। सो हियर वी गेट टू अनदर सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस ऐसे दे रखी होगी, एक तो ये सीक्वेंस हो सकती है, तो आप ये समझ सकते हो कि हाँ ये सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज इजी। अब आपको सीक्वेंस दे रखी होगी 1 4 9 16 25 36। अब इस सीक्वेंस को करने के लिए आप ऐसे भी जा सकते हो, बाय दिस वे ऑल्सो। और इस सीक्वेंस को करने के लिए आप एक और वे भी है। आप देखो 1 4 9 16 25 36 ये क्या है? अभी हमने देखा ये स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज रियली ब्यूटीफुल पैटर्न। ठीक है, हमें समझ आया। Why does this happen? Do you think it will happen forever? The answer is that the pattern does happen forever. Pattern हमेशा ही exist करेंगे। एक pattern बन गया तो वो हमेशा exist करेगा. But why? As mentioned earlier, the reason why the pattern happens is just as important and exciting as the pattern itself. क्योंकि वो pattern बन चुका है, वो अब repeat करेगा ही करेगा. A picture can explain it. Visualizing with the picture can help explain the phenomena. Recall that square numbers are made by counting the number of dots in a square grid. ठीक है, अब वो इसकी बात करें। How can we partition the dots in square grid into odd numbers of dots? 1 3 5 7। स्क्वायर में डॉट्स हैं, उनको हमने पार्टीशन करना है और नंबर ऑफ डॉट्स में। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हम ऐसे पार्टीशन कर लेते हैं, नहीं तो ये दो हो जाते हैं 1 2, इसलिए हम ऐसे करेंगे 1 1 2 3, 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, देन 11 आ जाएंगे। अब देखो आप काउंट करो डॉट्स। दिस इज 1, दिस इज 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, दिस पिक्चर नाउ मेक्स इट एविडेंट दैट 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 is 36 डॉट्स। अब स्क्वायर में 36 डॉट्स थे, उसको हमने पार्टीशन कर दिया इन ऑड नंबर्स। Because such a picture can be made for a square of any size. This explains why adding up odd numbers gives square numbers. By drawing a similar picture, can you say what is the sum of the first 10 odd numbers? अब फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स आप पहचानो कौन से हैं। ठीक है, और उसकी पिक्चर ड्रॉ करके देखो, आप ट्राई करो। फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स लिखो पहले। इट इज 1 3 5 7 9 11। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हो गए। यहाँ तक
11 का यहाँ तक बना था, इसके बाद और ऐड कर देंगे, 13 डॉट्स ऐड करेंगे, फिर 15 डॉट्स ऐड करेंगे, फिर ऐसे ही सो ऑन वी विल ऐड टिल 19 डॉट्स. Now coming to another example of such a relation between sequences adding up and down. अब हम adding up and down करेंगे. Let us look in the following pattern. 1 1 1 2 1. 1 में 2 ऐड किया प्लस 1 किया, 1 में 2 ऐड किया प्लस 3 किया प्लस 2 प्लस 1 किया. देखो इसमें क्या किया है, इससे एक अप नंबर और इसके बराबर का नंबर. अब 1 प्लस 2 प्लस 1 हो गया था. अब इसमें एक अप नंबर कौन सा होगा, 3. ठीक है, और इसके बराबर का नंबर 1 2 3, फिर 4 ऐड कर देंगे और फिर 3 के बराबर का नंबर 3 2 1. ऐसे हमारा एक पैटर्न बन जाएगा. दिस सीम्स टू बी गिविंग येट अनदर वे ऑफ गेटिंग द स्क्वायर नंबर्स. वही बात आ गई, हमारे स्क्वायर नंबर्स ही आ रहे हैं. आप देखो अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो स्क्वायर नंबर ही आ रहा है. 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, जो हमारा ऊपर आया था. बाय एडिंग द काउंटिंग नंबर्स एंड देन डाउन. ये हम क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ. पैटर्न्स एंड शेप्स. अब शेप्स में पैटर्न्स देखेंगे हम कैसे. शेप्स कौन से टाइप की होती है, 1D होती है, 2D होती है, 3D होती है. 1D मीन्स पेपर पे बनेगा, ठीक है. 1D 2D पेपर पे बनेंगे. 1D इज 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल. 3 डायमेंशन इज लाइक यू हैव बॉल, यू हैव क्यूब. ओके, क्यूब जो आप जिससे आप खेलते हो, दैट इज 3D. नाउ कमिंग टू एग्जांपल ऑफ शेप सीक्वेंस. अब ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, नोनागन, octagon, nonagon, decagon. What is this? Triangle is 3 sides, 1 2 3. Quadrilateral 4 sides, 1 2 3 4. Pentagon 5 sides, 1 2 3 4 5. Hexagon have 6 sides. Heptagon has 7 sides, 1 2 3 4 5 6 7. Octagon has 8 sides, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nonagon has 9 sides. Decagon has 10 sides. These are regular polygons. Now coming to this is the line, this is the triangle, this is again square, this is K5, pentagon, K6 is hexagon. These are complete graphs joining the vertices. जब हम vertices को join कर देंगे तो हम उनको क्या कहेंगे, complete graphs हैं ये. ठीक है. Now we come to stacked square. एक square आ गया, फिर उसके ऊपर एक और 3 स्क्वायर और ऐड हो गए, ये स्क्वायर बन गया. फिर और स्क्वायर्स ऐड करेंगे, सो वी विल गेट अ बिग स्क्वायर. फिर इसमें और ऐड कर देंगे, हर साइड में एक स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो वी विल गेट दिस, देन वी विल गेट दिस. दीज आर स्टैक्ड स्क्वायर्स. नाउ स्टैक्ड ट्राइंगल. ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल, ट्राइंगल है, ट्राइंगल बनाएंगे और ट्राइंगल बनाएंगे और ट्राइंगल बनाएंगे. ठीक है, सो दिस इज ट्राइंगल. स्टैक्ड ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल. फिर इस ट्राइंगल में हर साइड में साइड ट्राइंगल ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, देन इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा. नाउ दिस आर कोच स्नोफ्लेक्स. अब जैसे ये ट्राइंगल है, दिस इज ऑल्सो ट्राइंगल बट दिस इज नॉट रेगुलर ट्राइंगल. दिस इज स्टार, ये स्नोफ्लेक्स होते हैं. ठीक है, सो दीज आर ऑल पैटर्न्स एंड शेप्स. नाउ कमिंग टू रिलेशन ऑफ टू द नंबर सीक्वेंसेस. अब नंबर सीक्वेंसेस में आते हैं. नंबर सीक्वेंस में क्या होगा, often shape sequences are related to number sequences in a surprising way. Such relationships can be helpful in studying and understanding both the shape sequence
and relation number sequence. Example, the number of sides in the shape sequence of regular polygons, जो हमने देखा था, triangle, square, rectangle, ठीक है, pentagon, is given by counting numbers starting at 3, that is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is why these shapes are called respectively regular, triangle, quadrilateral, square, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, respectively. The word regular refers to the fact that these shapes have equal length sides. ये इसका मेन जो है ना, इसका मतलब ये है, the word regular refers to the fact that these shapes have equal length sides and also equal angles. That is, the sides look the same and the corners also look the same. This is the main thing which we need to remember. Regular means उनकी जो sides हैं वो same है, और जो angles हैं जो उनकी sides आपस में बना रही हैं, that are also equal. Now the other shape sequences in table 3 also have beautiful relationship with number sequences. अब ये देखेंगे हम. अब हम lines and angles next chapter में पढ़ेंगे, तो आपको angles के बारे में उसमें पता चलेगा. Now summary. Mathematics may be viewed as a search for the patterns and for the explanation as to why those patterns exist. ये हमने समझ लिया. Among the most basic patterns that occur in mathematics are the number sequences. ठीक है, हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. Some important numbers of number sequences include the counting numbers. ये क्या है? Counting numbers. और numbers आ जाते हैं, even numbers आ जाते हैं. ये हमने देख लिया. Sometimes number sequence can be related to each other in beautiful and remarkable ways. For example, adding up the sequence of odd numbers starting with 1 gives us square numbers. Visualizing numbers sequences using pictures can help us to understand sequences and the relationship between them. Shape sequence देखा हमने. Another basic type of pattern in mathematics. Some important examples of shape sequence include regular polygons, complete graphs, stacked triangles. ये भी हमने देख लिया. ठीक है. Shape sequence also exhibit many interesting relationship with the number sequences. Done. We are done with this chapter. हमने बहुत क्विकली किया, बहुत अच्छे से किया. Now we come to the main question and answers. Now, अब कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ. अब सोचो आपकी डेली लाइफ में मैथ्स आपको कहाँ कहाँ हेल्प कर रही है. आपकी मम्मी ने आपको शॉप पे भेजा कुछ सामान लेने, वहां पे आपने कहा मुझे ½ kg राइस चाहिए, ठीक है, 1 kg दाल चाहिए, तो यू आर यूजिंग मैथ्स, हाफ, 1. देन अगर आपने वहां पे पेमेंट की, ठीक है, आपको बोला कि 80 रुपीज हुए, आपने 100 रुपीज दिए, आपकी मम्मी ने 100 रुपीज दे के भेजे, तो आपने समझा कि हाँ 80 रुपीज मैंने अंकल को, शॉपकीपर को देने हैं. ठीक है. एंड इन रिटर्न हाउ मच ही विल रिटर्न. जब आप 100 रुपीज देंगे तो वो आपको मैथ्स बताएगी कि 100 - 80, 20 रुपीज आपको रिटर्न मिलेंगे. ठीक है. सम एग्जाम्पल्स आर sorry some examples are paying for fruits, vegetables, groceries, etc., calculation of speed of vehicles, designs or patterns in different buildings, finding area of any plot or out our own home. There could be many more such context in our everyday lives. ठीक है. अब मतलब आप, मैथ्स तो हर जगह है, कहाँ नहीं है मैथ्स. ठीक है. यू कैन सी क्लॉक, देयर इज मैथ्स. टाइम देखना हो तो मैथ्स पता चलेगा. देन किसी बिल्डिंग का कोई पैटर्न देखना हो, डिजाइन देखना हो, कोई प्लॉट का साइज देखना हो, तो वहां मैथ्स है. हाउ हैज मैथ्स हेल्प प्रॉपर ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड. तो ठीक है, ये हमने समझा कि जैसे कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज हो सकता है, रनिंग आउट आर इकोनॉमी में यूज होता है. ठीक है. डेमोक्रेसी में कैसे, जैसे जब वोट्स होती हैं, ठीक है, जब इलेक्शंस होती हैं तो वोट्स डलती हैं, तो वोट्स डलती हैं तो उनकी काउंटिंग होती है, तो वो क्या है, मैथ्स है. बिल्डिंग ब्रिजेस में डायमेंशंस देखनी है, वो क्या है, मैथ्स है. हाउसेज और अदर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. अब कोई घर बनाना है तो वो घर ऐसे नहीं बन जाएगा ना कि
ईंट लाओ पत्थर लाओ और ये बन गया। नहीं, यू नीड टू हैव डायमेंशंस ऑफ दैट हाउस। फिर उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे आर्किटेक्ट डिजाइन करेगा। उसके लिए हमें मैथ्स बहुत जरूरी है। मोबाइल फोन्स में हम करते हैं, टीवीज में, कंप्यूटर्स में, बाइसाइकिल्स में, ट्रेन्स में, हर जगह। कैलेंडर कैलेंडर देखते हो आप, आपको तभी पता चलता है कि जब आपको पता होगा कि मैथ्स में है क्या। हाउ टू सी कैलेंडर, हाउ टू राइट डेट। Now coming to another question. Can you recognize a pattern in each of the sequence in table 1? Yes, there is a pattern in each case. Powers of 2, 1, 2, 4, 2, power of 3, Viranka numbers and rest of the patterns. टेबल 1 में देखो आप क्या कह रहे हैं वो। ये हमने कर लिया है टेबल 1 में, आई गेस। यस, ये देखो, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। वाई आर 1, 3, 5 कॉल ट्रायंगुलर नंबर्स। वो एक डॉट था, फिर वो 3 डॉट्स बने, फिर वो 6 डॉट्स बने, है ना। तो हमने देखा वो ट्रायंगल्स बन रहे थे। यू विल नोटिस दैट 36 is both a triangular number and a square number. That is 36 dots can be arranged perfectly both in a triangle and in a square. Make pictures in your notebook illustrating this example. अब देखो आप, 36 डॉट्स वाला ट्रायंगल, ये 15 बना, ठीक है। ऐसे ही आप 36 डॉट्स वाला बनाओगे। अब देखो, ये जो है फिफ्थ क्वेश्चन में, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2, पावर्स ऑफ 3। पावर्स ऑफ 2 के लिए उन्होंने कहा है गिवन ऑन पेज 6। अगेन कमिंग बैक टू पेज 6, पेज 6, राइट। दिस इज पावर ऑफ 2, 1, 2, 2 की पावर 1, पावर ऑफ 2 मैंने आपको समझाया। 4 क्या होता है, 2 की पावर 2, तो 2 डॉट्स यहाँ, 2 डॉट्स यहाँ ज्वाइन कर देंगे। 2 की पावर 3 इज 8, 8 डॉट्स वाला ये वाली फिगर बनेगी। 2 की पावर 4 इज 16, 16 वाला ये वाली फिगर बनेगी। अब आप ये तो समझ रहे हो ना कि ये क्या है। 2 की पावर 4 इज 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, 4 टाइम्स 2। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, उन्होंने कहा है 3 की पावर, ऐसी सीक्वेंस तैयार करो जिसमें 3 की पावर हो। और उन्होंने इसकी डायग्राम बताई है, देखो 1, 3 की पावर 1 तो 3 डॉट्स बना देंगे। अब 3 की पावर 2 आएगा, 3 की पावर 2 इज 3 into 3 विच इज 9। तो 9 के लिए 1, 2, 3 डॉट्स बनाए, 1, 2, 3 डॉट्स बनाए, 1, 2, 3 डॉट्स बनाए और उनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ऐसे ये, अब ये 9 आ गया, तो 9 को हम 3 बार बनाएंगे। ये 9, ये 9, ये 9, तो कितना बन जाएगा 27, ठीक है। 3 की पावर 4, अगला नंबर जो आएगा दैट इज 3 into 3 into 3, 3 की पावर 3, सॉरी, ठीक है। 3 into 3 into 3 क्या आया ये 27। तो 27 वाली कौन सी फिगर है, ये वाली पूरी फिगर है। डन। अब ये 2 वाली आ गई जो हमने पेज नंबर 6 पे देखी। By drawing a similar picture, can you say what is the sum of the first 10 odd numbers? ठीक है, अब फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स को आप पिक्चर से भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप वैसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट एंड ऑड नंबर मीन्स 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 13 + 17 + 19, that come out to be 100, ठीक है। ये फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स हुए हमारे। Now by imagining a similar picture or by drawing a
It partially as needed. Can you say what is the sum of first 100 odd numbers? ये just leave this question. Can you find a similar pictorial explanation for why adding counting numbers up and down, that is 1, 1 plus 2, 1 plus 1 plus 1, 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 gives the square numbers? ये देखो, ये हमने देखा था ना, क्यों ये स्क्वायर नंबर्स देते हैं, क्यों ये स्क्वायर नंबर्स देते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये 1 का स्क्वायर बन जाता है, फिर ये क्या बनता है, 2 का स्क्वायर बनता है, दिस इज 1 प्लस 2, 3, 3 प्लस 3, 6, 6 प्लस 2, 8, 8 प्लस 1, 9, सो दिस इज 3 का स्क्वायर। ऐसे आगे में क्या आएगा, 4 का स्क्वायर। तो ये जो होते हैं ये होल स्क्वायर्स बनते हैं, इसीलिए ये स्क्वायर नंबर दे रहे हैं। अब देखो इस एग्जांपल में, देखो ये 1 डॉट आ गया। अब इन्होंने सेकंड में क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 1 डॉट, तो 1 डॉट, 2 डॉट्स और, ठीक है, 2 डॉट्स और प्लस 1 डॉट, तो ये क्या बन गया, 4। ठीक है, अब ये 3 का स्क्वायर मीन्स हमें 9 डॉट्स बनाने हैं, तो 1 डॉट, ये बना लो पहले आप, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे 1, 2, 3, 6 हो गए ये, 1, 2, 3, 6, 7, 8 हो गए, और यहाँ पे आएगा एक और 9 हो गए। ज्वाइन करो इसे, देखो क्या बन रहा है। ठीक है, यू आर गेटिंग अ स्क्वायर, हियर ऑल्सो यू आर गेटिंग स्क्वायर। इसी, जब हम अगला नंबर बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, 16, कैसे वो बनेगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, क्या बना, 16। तो ये 16 डॉट्स वाली डायग्राम है। Which sequence do you get when you start to add all one sequence up? What do you sequence do you get when you add all the one sequence up and down? अब वन सीक्वेंस अप में क्या करना है, 1 प्लस 1 करते जाना है। ठीक है, 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे 5 टाइम्स 1, 6 टाइम्स 1, तो ये हो जाएगा। अब और सीक्वेंस अप एंड डाउन में क्या करना है सेम ही, बस उसमें फर्क आ जाएगा, 1 तो 1 नहीं रहेगा, फिर 1 में 1 अप ऐड करेंगे और एक डाउन ऐड करेंगे। ठीक है, और अगला क्या होगा, 1 में यहाँ 1 और 4 आएगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब यही एज इट इज रहेगा पहले, 1 प्लस 1 प्लस 1, अब इसमें हम 1 ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर ये डाउन वाला रहेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, सो ऑन। तो ये सीक्वेंस ये आ जाएगी हमारी, राइट। विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू एडिंग द काउंटिंग नंबर्स अप? कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन? अब काउंटिंग नंबर्स कौन से थे, वी हैव स्टार्टेड दिस 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, उसको ऐड करना है, 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, 4। ठीक है, ऐसे ऐड करेंगे, अगला नंबर क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, विच इज अ ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। अब ये क्या बन रहा है, ये बना 1, ये क्या बना 3, ये क्या बना 6, ये क्या बना, सी व्हाट इज दिस, 1 प्लस 2, 3, 3 प्लस 3, 6, 6 प्लस 4 इज 10। तो ये ट्रायंगुलर सीरीज नहीं बन रही हमारी, जो हमने देखा था, 1 डॉट, फिर 3 डॉट्स, फिर 6 डॉट्स, फिर 10 डॉट्स, तो ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, what happens when you add up a pair of consecutive triangular numbers?
फिर से वही क्वेश्चन है कि ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। ये हमने पहले टेबल में देखा है कि वो स्क्वायर नंबर्स बनते हैं। ठीक है, दिस इज टेक 1+3, 3+6, 6+10, 10+15, विच सीक्वेंस डू यू गेट। तो हमने देखा ये स्क्वायर नंबर्स बनते हैं, ये हम कर चुके हैं ऊपर क्वेश्चन। What happens when you start to add up powers of 2 starting with 1, that is 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 4, 1 plus 2 plus 4 plus 8। अब क्या करना है, add up powers of 2, 2 की पावर्स हमने ऐड करनी है। ठीक है, 1, 1 plus 2, फिर 1 plus 2 plus 4। अब ये क्या है बार, 2 की पावर 1, ये क्या है, ये तो पुराना नंबर आएगा 2 की पावर 1, ये क्या आएगा 2 की पावर 2। अगला नंबर कौन सा आएगा, 1+2+4 प्लस राइट 8। कैसे, ये 2 की पावर 2 हो गया, ये 2 की पावर 3 हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, ये क्या बनेगा 1, ये क्या बनेगा 3, ये क्या बनेगा 4, 2, 6, 7, ये क्या बनेगा राइट 15। तो हमें क्या मिल रहा है, यस वी गेट 1, 3, 7, 15, 31। और अगर आफ्टर एडिंग 1 टू ईच नंबर वी गेट 2। अब इसमें ही अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, क्या सीरीज बनी हमारी 1, 3, 7, 15। इसमें कहा है उन्होंने 1 ऐड कर दो सब में, तो ये 1, ये 2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा। अब आप ये देखो ये क्या बन रहा है, ये का ये बन रहा है 2 का स्क्वायर, 2 1, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, so on. What happens when you multiply the triangular numbers by 6 and add 1? Which sequence do you get? Can you explain it with picture? अब उन्होंने कहा triangular number with the, when you multiply triangular numbers with 6, triangular numbers हमने ये देखा, ये बनता है ये 1, 3, 6, 10। तो ये हमारी बनती है ना 1, 3, 6, 10, ये हमारी सीक्वेंस बनती है। उन्होंने कहा है इनको 6 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है 1। ठीक है, 1 इंटू 6, 6 प्लस 1 7, 3 इंटू 6 18 प्लस 1 19, 6 इंटू 6 प्लस 1, 6 6 36 प्लस 1 37, so on we get this sequence। ठीक है, got it। What happens when you start to add up a hexagonal numbers, that is take 1, 1 plus 7, 1 plus 7 plus 19, 1 plus 7 plus 19 plus 37, which sequence do you get? Can you explain it with a picture? अब देखो जब हम हेक्सागोनल नंबर ऐड करेंगे तो सीक्वेंस देखो क्या बन रही है 1। ठीक है, 1 का 1, फिर 1 प्लस 7 इज 8, 1 प्लस 7 प्लस 19 इज 27, 1 plus 7 plus 19 plus 37 is 30, 64। ठीक है, ये बन रहा है हमारा। आगे क्या आएगा 125। तो ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, यस दिस इज क्यूब। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। ठीक है, सो वी गेट क्यूब नंबर्स। ये टेबल 3 की बात कर रहे हैं, कैन यू रिकॉग्नाइज सीक्वेंस इन टेबल 3। टेबल 3 हमने देखा है ऊपर, विच इज या दिस इज टेबल 3। ठीक है, जब हमने शेप सीक्वेंस देखे थे। 3 4 5 6 7 8 9 10। What is this? 3 sides triangular, 4 sides quadrilateral, 5 sides pentagon, 6 sides hexagon। ऐसी सारी साइड्स आएंगी। ये 10 वाली कौन सी है, डेकागन। राइट। ठीक है,
Now coming to next question. Count the number of sides in each shape in the sequence of regular polygons. Regular polygons हमने देखा. Which number sequence do you get? What about the number of corners in each shape in the sequence of regular polygons? Do you think the same number sequence? Can you explain this why? Regular polygons कौन से हैं? Triangle, square, then pentagon, then hexagon, so on. तो इसमें कितनी साइड्स कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप कितनी है? 3, 4, 5, 6, 7, सो ऑन. ये क्या है हमारी साइड्स. उसके बाद नंबर ऑफ कॉर्नर्स पूछा उन्होंने. देखो नंबर ऑफ साइड्स के आगे हमारी. नाउ वी गेट काउंटिंग नंबर ऑफ नंबर सीक्वेंस. अब ये हमारा नंबर सीक्वेंस बन गया है सिंपल, जो सबसे स्टार्टिंग में देखा था हमने. अब नंबर ऑफ कॉर्नर्स देखो. कॉर्नर्स कितने हैं? 1, 2, 3 कॉर्नर्स. 3. इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4. 4. इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. अगले में कितने? 7. तो ये भी हमारी एक सीक्वेंस बन रही है. ठीक है. यस वी गेट द सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस. उन्होंने पूछा डू यू गेट द सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस? यस. ठीक है. अब इसका कंक्लूजन क्या है? इसका ये होता क्यों है? क्योंकि ये एक क्लोज्ड फिगर है. क्लोज्ड मतलब ये बंद फिगर है. ठीक है. तो जब कोई भी क्लोज्ड फिगर होती है ना, उसमें नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ कॉर्नर्स सेम होते हैं. ठीक है. In any closed figure, number of sides is equal to number of corners. Corners are vertices. Count the number of lines in each shape in the sequence of complete graph. Which number sequence do you get? Can you explain why? तो ये हमारा जो कंप्लीट ग्राफ्स है उसमें देखेंगे हम. ठीक है. तो उसमें हमने ये रहा कंप्लीट ग्राफ शेप्स. ठीक है. इसमें देखो 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसमें कितनी है? 2. तो ये भी हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है. ठीक है. 1, 3, 6, 10, 15. ठीक है. नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है हमने. तो ये सीक्वेंस कौन सा बन रहा है हमारा? ट्राइंगुलर सीक्वेंस. ओके सॉरी, ये हमने नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है. रुको. सो सॉरी. इसमें देखो नंबर ऑफ लाइंस 1, 1, 2, 3. 3 होगी. इसमें कितनी है? 1. इसमें कितनी है? 3. इसमें काउंट करो. 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 6. इसमें काउंट करो. पहले आप सारी आउटर लाइंस काउंट कर ले करो. 1, 2, 3, 4, 5. फिर इनर आ जाओ. 1, 2, 3, 4, 5. तो 5, 5, 10 हो गई. इसमें काउंट करो. पहले कौन सी करनी है? आउटर. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. 6 हो गई. फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ठीक है. और ये 14 और ये 15. ठीक है. आई गेस वी गेट 15. 16. एक साइड हमारी रह रही है. लेट्स काउंट अगेन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 15 लाइन्स आ रही है ना हमारी। तो 15 ही तो है, राइट। ठीक है, ये पैटर्न है। तो ये क्या बना है, ट्रायंगुलर नंबर बन गया हमारे ये। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर्स। लिटिल स्क्वायर्स पूछा उन्होंने, किसमें, स्टैक्ड स्क्वायर्स में। अब स्टैक्ड स्क्वायर्स देखो कौन से थे, जो स्क्वायर के ऊपर नीचे स्क्वायर लगे थे, ये वाला। अब इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करो, लिटिल, ठीक है, छोटे वाले। सो दिस इज 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सिमिलरली आप ये काउंट करोगे तो आपके पास 25 आएंगे। तो हमारे पास क्या बना, 1 4 9 16 25, ये सीरीज बनी हमारी। ठीक है, और ये सीरीज क्या है हमारी, यस, स्क्वायर ऑफ नंबर। देखो 1 4 9 16 25, दिस इज अ स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। ठीक है, स्क्वायर्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग दिस डॉट्स। अब उन्होंने ना लिटिल स्क्वायर्स की बात की थी। अगर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने होते ना तो वो अलग मेथड होता, उसमें अलग आते नंबर। नाउ हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्राइंगल्स। ऐसे हम स्टैक्ड ट्राइंगल्स में देख लेंगे। तो उसमें हम जब देखेंगे तो हमारे पास, चलो देखते हैं, हम उसमें स्टैक ट्रायंगल्स भी देख कर लेते हैं। जैसे स्टैक ट्रायंगल्स, राइट। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, ट्रायंगल्स कितने हैं, 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये 16 आएंगे, ये 25 आएंगे। अगेन सेम सीक्वेंस आएगी हमारे पास। कौन सी सीक्वेंस, स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। ठीक है, to get from one shape to the next shape in the Koch snowflake sequence, one replaces each line segment by a speed bump. As one does this more and more times, the changes become thinner and thinner, with the very small, uh, very small. The changes become thinner and thinner with very small line segments. How many total line segments are there in each shape of the Koch snowflake? How many line segments देखने हैं हमने? What is the corresponding number of sequence? The answer is 3, 12, 48 and 3 times power of 4. Okay. तो अब ये जो हमारी लास्ट फिगर पैटर्न था, इसमें हमने लाइंस देखनी है। इसमें कितनी है, 3। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दिस इज 12। 12 के बाद यहाँ पे आएगा, इसको काउंट करेंगे तो ये आएगा 48। ठीक है, तो इसमें इसमें ये लाइंस आपको काउंट करनी है, ऑल द लाइंस 1 2 3 4 5 6 7। तो आप ये काउंट करना। ठीक है, ऐसे इसी में काउंट करना। दिस इज सिंपल काउंटिंग, यू कैन डू इट। ठीक है, व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग, हाउ मेनी टोटल, ये हमारी होगी टोटल लाइन सेगमेंट्स इन ईच शेप। 3 12 48 देख लिया हमने, 192 और 768 आएगा। कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस क्या बनेगी, आप देखो। अब इसको हमने एक सीक्वेंस में बनाना है। ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर है ना, अब कैसे सीक्वेंस में बनाएंगे। सीक्वेंस में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई पैटर्न। पैटर्न कैसे आएगा, 3, फिर 3 इंटू 4 करेंगे, फिर 3 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो मतलब 3 तो कॉमन है। ठीक है, ये 4 1, 4 की पावर 1, ये 4 की पावर 2, ये 4 की पावर 3, सो ऑन। ठीक है, तो ये पैटर्न बनेगा हमारा।
गॉट इट? अब हम ये हमारा चैप्टर हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी वर्कशीट करवाऊंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे, सो दैट ये जो पैटर्न आपको समझ आने लग जाए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चंस में से पैटर्न नहीं दिखेंगे। ठीक है? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आप वो देखना, आपको वर्कशीट में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको समझ आएंगे कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे देखना है हमें। ठीक है? तो आपको ये चैप्टर और अच्छे से जरा समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट।